Friends, Minister of Law, Justice and Company Affairs, Shri Arun Jaitley ji is here. They'll be. The Information Technology Act had been approved by Parliament. The Department of Company Affairs is amongst the first departments to prepare a long-term roadmap for itself for encouraging e-corporate governance. There are two steps in this regard. The first is that with effect from the 1st of November 2000, every company will now start getting a corporate identification number. Balance sheets and other documents of companies which are filed with ROC will be available on the website of the department. And thirdly, we are trying to get this a part of this amount, approximately about 100 crores, from the CLSS MNST amount that we have collected for the purposes of computerization, so that the entire functioning of the ROC can eventually become paperless. This will be of great convenience both to companies, also. Hello. I hope you're very comfortable flight. That's the way you got it. The Secretary of Maintenance of the way. Okay. What's Yeah, I've noticed. up top is still very pleasant. भाषण भी हो साहब यहाँ सारे दिल्ली के जितने पत्रकार चर्चा ना केंद्र में बड़ी में अभी जाए एक उन्होंने इनको बुलाया और हास्य लेखकों के बीच में इनका कॉट वैसे आपने पब्लिक लाइफ में कम होता जा रहा है वो तो बहुत कम है लेकिन यहाँ ज्यादा तो होना बोलते कि नहीं देखने से हमको आता है बहुत मोटर सर्टिफिकेट है जीवाई वाला का हुआ नहीं ना इसलिए तो नहीं करने का इसलिए कैसे बोले कि जाओ ना नया साल कहाँ देखेगा वो नया साल कहाँ देखेगा अच्छा आपके हिसाब से यहाँ अगला भागेला जो भी लोग कितना दिवस में बेगू करी लेता देखिए, ये जब लिस्ट आपको मिलेगी उस लिस्ट में साफ हो जाएगा हुज हु। थोड़ा सा तो इलेक्शन कमेटी किनके पक्ष में तय करती है उसकी सैंक्टिटी हम रहने दें। संजीव, well, the BJP, as I said, is receiving a huge and a tremendous response. I have seen some parts of Mr. Modi's yatra. I have gone through the reports of those parts which I had no direct access to. There is no question of BJP asking somebody else by proxy to do something. And secondly, I don't think there is anything dirty or sinister in the campaign which we have undertaken. It's a very transparent campaign. Excellency, once again I extend that warm welcome to Vivek Ardu. चलिए।
Thank you, ladies and gentlemen. अपनी परिस्थिति को देखते हुए आरजेडी द्वारा अलायंसेस के बारे में एक फ्लेक्सिबल नीति थी. So the width of caste and political alliance, coupled with manipulation of voter list and booth capture. हम अपनी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी को कंसोलिडेट करेंगे. पूरी जब तक वो ट्रेन दे रहेंगे ना आएगा. वो ईटीवी है ना, लोकल चैनल बिहार का, वो सबसे ज्यादा सही है. और हमारी राज्य इकाइयां सरकार बनाने, हमारा जो गठबंधन है वो सबसे बड़ा गठबंधन के रूप में सामने आया है और बहुमत के काफी नजदीक हम लोग पहुंचे हैं. और इसलिए हमारा गठबंधन और हमारी राज्य इकाइयां सरकार बनाने का उस प्रांत के अंदर दावा करेंगी. इस चुनाव परिणाम का निकलता है तो वो ये है कि ये आरजेडी विरोधी मैंडेट है. आरजेडी को सत्ता से हटाने के लिए ये मैंडेट है, जनादेश है. स्पष्ट और क्लियर मैंडेट बहुमत के रूप में किसी गठबंधन को नहीं मिला, लेकिन जिनका सबसे अधिक क्लेम इस जनादेश के प्रति हो सकता है, द बेस्ट क्लेमेंट्स टू द मैंडेट कैन ओनली बी द एनडीए. Just a few points to brief you on the preparation for the one-day match between कि दीना बैंक से 9 ब्रांचेस से आज टिकट सेल शुरू हो चुकी है. अच्छा रिस्पांस है और हर डिनोमिनेशन की टिकट वहां से बिक रही है. और इस बार हमने 6 दिन पहले से ही टिकट सेल आरंभ कर दी है कि वी आर एबल टू रियलाइज द मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम दिस सीट्स. show to the manager of the bank, and there will be another person who will be authenticating the signature and get it to him. हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी अधिक से अधिक टिकट की सेल हो पाए उसको हम लोग करें. और इस बार मैच में जो टिकट सेल से कलेक्शन करें, दिल्ली के हिसाब से तो रिकॉर्ड कलेक्शन करें ही. Probably one of the highest collections ever in the country from a sporting event. लड्डू का अच्छा वो अमूल ने आइसक्रीम भी बनाई है. नहीं, ये भी अंजीर के ना, ये शुगर फ्री. Skimmed milk so that the milk fat is less and use a spender.
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पंजाब में कल दोपहर को बैठक है शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की। यह संयुक्त बैठक होगी जिसमें अकाली दल बीजेपी का जॉइंट नेता जो मुख्यमंत्री का दावेदार होगा वो चुना जाएगा। We have just now met His Excellency the Governor, and a unanimous resolution of the legislative party of the BJP, comprising of 110 MLAs, has been submitted to the Honorable Governor. Along with that request, we have also submitted written letters pledging unconditional support to Shri B.S. Yediyurappa, signed by 5 independent MLAs, and those 5 independent MLAs have also met the Governor along with us. हो जाता है तो हम लोग तुरंत चाहेंगे कि शपथ ग्रहण परसों हो। अब उसमें कितना समय लगता है, केंद्र को मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाकर मैडम सोनिया जी देश जानना चाहता है, ये भोपाल के अंदर हजारों लोगों के मौत का सौदागर कौन था? मैडम सोनिया जी, आप अपना मुंह खोलिए, आपका मौन तोड़िए और देश की जनता को विश्वास दिलाइए, हुआ क्या था? कि 2001 में जब गुजरात में भयानक भूकंप आया था, गुजरात मौत की चादर ओढ़ करके सोया था। गुजरात बचेगा कि नहीं, ये सवाल या निशान खड़ा हो गया था। और उस संकट की घड़ी में बिहार के लोग गुजरात पहुंचे थे, हमें मदद की थी, हमारे आंसू पहुंचे थे। अपने नरेंद्र मोदी जी आ गए हैं, हमारे येदियुरप्पा जी आ गए हैं, सम्मान करते हैं। एक बार खड़ा हो जाइए सब और ताली बजाइए। एक बार हम सभी लग रहा है, अपने घरों पर लग रहा है, और ये दरबार नियमित रूप से केवल लग नहीं रहा है। कि हमारी लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं, एक युद्ध हमने पता किया है। ये दूसरी स्पेक्ट्रम का मामला है, घटाना की लंबी से यदि हमारी सरकार बनेगी तो बिहार केंद्र की स्थिति देख लीजिए। केंद्र के संबंध में यह कहा जाता था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं।
आज 3 साल हो गए इस देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। 3 साल हो गए कीमतें आसमान को छू रही है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है। 3 साल हो गए दोहरे आंकड़े में, जिसको डबल डिजिट कहते हैं, इन्फ्लेशन, खाद्यान्न पदार्थ की कीमतें 18% सालाना के हिसाब से बढ़े। यूपीए सरकार की नीतियां आम आदमी के खिलाफ एक षड्यंत्र के रूप में बन चुकी है। यूपीए के मंत्री, यूपीए के घटक दल सारे इसमें शामिल हैं। इसके उत्तर प्रधानमंत्री को देने हैं। 3 वर्षों से जब ये कांड चल रहा था तो बार बार हम कहते थे इसको रोकिए। सरकार को मालूम था, संसद में हम उठा रहे थे, मीडिया के अंदर छप रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपनी कुर्सी बचाना चाहते थे, राजा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते।